بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Okay, so last week we covered lesson number 4 of the book, which was about gender, masculine and feminine, and in Arabic, مذكر and مؤنث. We covered the different reasons a word can be مؤنث, and the types of مؤنث, indicators of مؤنث, essentially. Some words which are known to be muannas without any rule. They're just known and used as muannas. And then we also did some revision of prior lessons, essentially practice. So I was thinking, I was reviewing the contents of the book today, and I plan that inshallah in the next 2 months we should be able to finish the first volume of the book if everything goes smooth, inshallah. And but we'll have to speed up a little bit. So speed up is not just in terms of the lessons speed, but also in terms of homeworks, because I also want to make sure that you guys completely understand whatever we cover, inshallah. So inshallah, I'm gonna post an assignment later today, which is gonna be tomorrow for you guys, inshallah, which is going to be about all lessons that we would have covered by then, inshallah. So let's inshallah start from this new lesson, which is lesson number 5. If any one of you has the book, then we can start reading. Actually, everyone should open the book, and one of you, whoever wants to start reading, should start reading, inshallah. This lesson is about number. In the book, you'll probably find in the book you'll find singular and plural, essentially the numbers, not the adad, not the counting, but number, singular, dual, and plural. So who wants to read from the book? I can read. Okay, so Bismillah. 1. In Arabic, words are of 3 categories with regards to number: singular, wahid or mufrad, indicating 1, example, rajulun, 1 man; dual, tasniya, indicating 2, for example, rajulani, 2 men; plural, jama', indicating more than 2, for example, rijalun, more than 2 men. Number 2, the dual is formed by adding in to halatul rafa, the nominative case, or aini to halatul nasbi wal jar, the accusative or genitive cases. For example, malikun, one king, malikani or malikaini, 2 kings; malikatun, 1 queen, malikatani or malikataini, 2 queens. Note 1. In the prevalent books of Arabic grammar and morphology, the terms in and aini are not written. Instead, these terms are expressed in detail as maftuhatun wa nunun maksuratun alifun ma qablaha, and ya'un ma qablaha maftuhatun wa nunun maksura. We have chosen the former method for the sake of brevity. Note 2. To pronounce aini, ani and aini, one can read the fatha with the sound of an alif and say ani and aini. Such signs will come frequently later on. Pronounce them in this manner wherever one comes across them. Number 3, plural. Let's have a little pause here. So far what we've seen is, number 1, that there are 3 categories: singular, which is mufrad and wahid, dual, and plural in Arabic, right? So just all of you guys knew already. Now they're explaining the point number 2 is about how to construct the dual.
Okay, and the plural is going to be the next point. So let me explain again what they've just said. You guys hopefully can see my screen, right? So dual is expressed by adding ani or by adding aini. Okay, before at the end of a word. So what this means is, for example, the word kitab, kitabun. And then if you add this ani on top of it, it becomes kitabani, kitabani. Just a second. Now, after you are down, the hotter it gets outside, the more it's going to be. Okay. So I was saying kitabani is a dual meaning two books. And similarly, you add this thing in the front of the singular form, it becomes kitabain. So this is also two books. All right. There are two words to express this. They say the first is called halatul rafa, second is called halatul nasab and jar. All right. So inshallah, details of what are these two halat will come inshallah later. For now, you can just remember that these are different halat, but they mean the same thing. All right. And I think where you're reading from in note number 1, there's probably a there's probably the Arabic part is not written properly. So the actual Arabic here, note number 1 is, or what you will find in other books is alifun ma qablaha maftuhatun wa nunun maksura. Do you guys, all of you guys see this in your books? In note 1, alifun ma qablaha maftuha wa nunun maksura. Meaning there is an alif ma qablaha, before that alif is maftuha, is a word which has a fatha, meaning of zabar. Okay, the word before alif has a zabar. Wa nunun maksura, and then there's a noon after alif, which is maksura, meaning has a kasra, meaning has a zir. So this is that alifun ma qablaha maftuha. This is how they write it. Whatever the word before, letter before that is has a fatha, and because alif doesn't have a haraka, it's always sakin. So the word before alif is always going to be have a fatha in general as well. So alif ma qablaha maftuha, and then there is a noon which has maksur. This is when a word ends, when a noun ism ends with this, then that noun is usually going to be dual. And then the other was ya'un ma qablaha maftuha wa noon maksura. There is a ya, and before that is a maftuha word, meaning a word that has a fatha or a zabar. But the ya itself is sakin here. And the noon and maksura, meaning noon has a kasra. These two things, when they come in the end of an ism, this indicates that the word is a dual. Any question? No question? Okay, alhamdulillah. So let's go on. Now, you for pronouncing, you can say ani and aini, like you just said, which is fine. Let's go to number 3. Number 3, plurals are of two types: al-jam'u salim, the sound plural; al-jam'u al-mukassaru, the broken plural. The sound plural is one in which the singular form of the word remains intact, sound with some addition at the end. It is of two types: one masculine, muzakkar, in which una in halatul rafa, the nominative case, or ina in the accusative and genitive cases are appended. For example, Muslimun, one Muslim; Muslimuna or Muslimina, many Muslims. Number 2, feminine muannas, in which atun in the nominative case or atin in the accusative and genitive cases are appended. Example, Muslimatun, one female Muslim; Muslimatun or Muslimatin, many female Muslims.
The broken plural is one in which the form of the singular word is broken, that is changed. It has no fixed rule for making it. Sometimes alphabets are added or deleted, and sometimes there is merely a change in the harakat. Example: Nahrun becomes Anburun, Rajulun becomes Rijalun, Wazirun becomes Wuzara'u, Kitabun becomes Kutubun, Hashabun becomes Kushubun. The broken plural will be discussed in detail in lesson 12. Note 3. Al-Jam'u Salim, sound plural of some feminine words, is like the masculine plurals. For example, the plural of Sanatun, year, is Sinuna or Sinina, or sometimes Sanawatun. Note 4. The noon that appears at the end of the tasniya, dual form, and the al-Jam'u al-Mudakkarus Salim, sound masculine plural, is called Nunun Arabiya. See lesson there. Some nouns are singular. Number 4. Some nouns are singular in form but refer to a whole group. There is no singular for them as well because they are not plurals in reality. Such nouns are called Ismul Jamr. For example, Qaumun, a nation, Rahatun, a group. These words are generally used like plurals in sentences. For example, Qaumun Salihuna, a pious nation. Number 5. You have learned in lessons 3 and 4 that the adjective corresponds with its noun in Arab, being definite or indefinite, and in gender. Now remember that the adjective has to correspond with its noun in number as well. However, when the noun being described is jam'u ghairi or akilin, the plural of an unintelligent being, whether masculine or feminine, the adjective is generally singular feminine, muannas wahid muannas, although it is sometimes plural. One can say ayyamun mardudatun as well as ayyamun mardudatun. Remember the vocabulary. Okay, mashallah. So, mashallah, we finished this. There's a lot of detail, and so this is the good thing about the book, that it covers everything, and then also covers examples and exercises. And the order is also very good, that they start with Asma. But anyway, let's go back. So number 3, where they start discussing about plurals. One thing they're saying is that there are 2 types of plurals, sound and broken. Okay, sound meaning salim. So the word salim means sound, right? Which is, intact and proper and fine. And broken means something that's broken. So in Arabic, it's called mukassar. Mukassar, something that has been or was broken. Another word used is taksir, al-jamu taksir. There may be other words, but these 2 are the common names of these 2. Salim and broken are Salim and mukassar are the 2 types of plurals. Okay. In dual there are no 2 types. All right. In dual there's only 1 type, which is this one. It's either going to be ani or it's going to be aini. So they depend on the halat, on the state, grammatical state. Okay. You can remember the word grammatical state, which is in Arabic you call this i'rab. Okay, so halatul rafa is one grammatical state, halatul nasab is another grammatical state, halatul jar is another grammatical state. There are 3 states which will be covered in lesson 10. Here you can just remember that in different grammatical states these appear differently. So at most they can be in 2 ways, ani or aini. All right, but the type of dual is one, meaning that all words, all ism, every ism that exists in Arabic, if you want to have a dual of that, it's going to be in this case when it's going to be in halatul raf. But if you want that dual in halatul nasab or halatul jar, it's going to be in this case aini. All right, that's it. In plurals, there are different ways you can make plurals. One way of making plural is the salim plural. All right, this is the easy one. So to make this one, you add una. Okay, the word before this must have a dhamma. When you add this thing before or similarly, ina, one of these 2, and this is again halatul rafa.
That's called, they use the English terminology of this, which is, you don't need to remember that. If you want, you can just remember it. But the Arabic is the important one. Nasab and jar are the grammatical states, and this is the other grammatical. There are three grammatical states, but rafa, nasab, and jar. In this particular plural type sound, the rafa is indicated. The halatul rafa is indicated by waw and noon, and in the halatul nasab and jar is indicated by ya and noon. So salim plurals will have one of these two in the end of the ism. Okay. The example they gave, Muslim, the word Muslim means Muslim, singular, one Muslim. If you add this una in the end, right? So it becomes Muslimuna. This is many Muslims, plural. And if you add ina in the end, again, this means the same thing, Muslimina. Muslimin we use commonly, right? In Urdu. So both of these are the salim plural of the word Muslim in different halat, in different grammatical states. Okay, this is all you need to know about the sound plurals in masculine plurals. Okay, then in feminine, this is a little different. So when we were doing dual, there's no distinction about masculine, feminine. Both these words are going to come with the feminine as well as the masculine. So dual is easy actually, but it's used less often. That's why people forget. In plural, salim, the way to make a salim masculine plural is you had waw noon or a ya noon. The way to make a feminine plural, feminine sound plural, you add a alif ta with a lammatain or an alif ta kasratain. Okay. And of course, whenever there's an alif sakin, the word before that has to have a fatha. So one of these two is added. This is going to be halatul rafa. This is going to be halatul nasab and halatul jar. So for example, a feminine Muslim is muslimatun, female Muslim. When you add, so when you're adding, by the way, you get rid of this ta. Because ta is indicating a feminine form. So you just add the alif and ta in the end of Muslim. It becomes muslimatun or becomes muslimatin. Okay. This is it. This is all about salim plurals. This is one type of plurals, salim. Another type of plural is the broken plurals. So we just covered point number 3. I think we covered the whole way. We just the broken plural part we haven't covered. So in the broken plural part, there's no easy way to remember the types or the ways you make broken plurals. There are many broken plurals actually, like many scales of broken plurals, and they give examples. Nahar is a, anyone knows what's the meaning of nahar? We use it in Urdu as well, nahar. Okay, nahar. Right, narrow nahr. River or canal? Yeah, river or canal. Exactly. So a river, yes. Nahar is a river. Anhur are rivers, multiple rivers. Rajulun, one man. Rijalun, multiple men. Wazir, no minister. Wuzara, many ministers. Kitab, book. Kutub, many books. Khashab is a piece of wood. Khushub are woods. So you can, what they're saying is that the scale is, not predictable over here. Anhur on the scale. Af'al is different from rijal, fi'al, this scale. So there are different types of plurals. Which plural fits which singular? There's no, rule about that. You just memorize that. Okay, the plural of this word is that. The plural of this word is that. The plural of kitab is kutub. You don't say kitabuna. You don't say kitabina. You don't say, any other like wuzara. You cannot make kutaba, for example. Okay. The plural of kitab is kutub. You don't use any other scales. Similarly, the plural of wazir is wuzara. You don't say the plural of wazir is waziruna, or you don't say wuzurun like kutubun. You don't use the other scales. There's only one scale. There could be more than one in certain cases,
But usually there's only one scale for a given singular ism. There's only one plural, broken plural scale that's used for that. Make sense? If no, please ask a question. So we just have to memorize all of these. कहीं कोई step नहीं है, कोई इस पे याद करने को. Yeah, how to make a broken plural? There's no rule. There is a list of the all scales, okay, which is going to be covered lesson 12, I think. All these scales like anhur, rijal, af'ul, fi'al, fu'ala, fu'ul, fa'al, these are scales, right? The scale wazn on which the plural is coming. There is a like a known list of all these, but there are many, I think 15 or I don't know however many, at least 10 different scales. So it's best to memorize. I think when we go to lesson 12, you should memorize all scales, but you don't need to exactly know. You don't actually, you will learn over time, but you don't need to like sit down now and start memorizing. Okay, this word is on this scale only, and this word is on that scale only. But that's part of the exercise. So as you develop your vocabulary, you will learn the plurals as well. And there's no other way except to read them and study them and learn, just like you do in Urdu. In Urdu, you know that the plural of wazir is wuzara, right? Especially with news that we hear, right? The word wuzara is known in our minds already, that's the plural. There's no other plural of wazir that's used, right? The plural of in Urdu, plural of kitab is kitabe, right? That's only the word used, right? For example, kutub may also be used, but no other scales are not used. Similarly, other words, you learn these over time when you build your vocabulary. Okay, the plural of this is that, or the plural of this is that. That's how it is. Sometimes a word can have a sound plural. Now let's go next. A word sometimes can have a sound plural as well as a broken plural. Okay. So I think the example they give here is, which is not the actual, their point over here, but note 3 they give the word sanatun. Example, the plural of this is sanavatun, which is a sound plural, and also sinuna, which is a broken plural. Okay. The plural of sanatun, which means a year, one plural is sinwan, sinun and sinin, and the other plural is sanawatun. So there could be different plurals. Okay, in the case of sinuna and sanavatun, this is both of them are sound actually. But sometimes words can have like broken and sound salim plurals. I can give you an example. Talib, a student, right? Plural is tulaba. Okay, and talibuna. This is sound salim. This is broken mukassar. All right. So what this means is the word talib can have different plurals, and they can be salim, they can be mukassar. There would be other words as well that have different plurals. Both are used or multiple are used. All right. And sometimes it's not the case. Sometimes a word is only going to have a broken plural, or a word is only going to have a sound plural. Like the word Muslim, there's no broken plural for the word Muslim. You always use Muslimuna or you use Muslimina for masculine case. That's it. Okay. Sometimes the word can have different broken plurals. Kafir. The word kafir has a plural kafara. Ulaika humul kafaratul fajara. Kafaratun. Okay. This is a plural meaning multiple kafirs. And kafiruna. Suratul kafirun, right? This is the sound plural. This is broken. Okay. So a word can have different plurals, and all of them can be used. All right.
Next point they say, number 4, is that there are some words which are singular, but they refer to a group, like qawmun, a nation, refers to many people actually. So it should be plural. But the word itself, the word qawm itself, the word itself is singular. It's used as singular. Actually, the rule of this is there's is called ismul jama'. The ismul jama' can be used as a singular and can also be used as a plural. Okay. So when we go to some examples, we see this in detail. They give example qawmun salihuna, a pious nation, but it can be used as singular as well, and can also be used as a feminine singular as well. There's a lot of detail about the ismul jama', but when time comes, inshallah, we can go in detail. Okay, number 5, last thing they say, which I mentioned, I think, in 2 or 3 weeks ago, that when making murakkab tawsifi, this is the last important thing. So we covered ismul jama'. I don't know what's it called in English. And then we're covering murakkab tawsifi. In murakkab tawsifi, where you need to have a mawsuf and a sifa, right? These two words need to match in 4 things. I think I mentioned. One was definite and indefinite status, which is ma'rifa and nakira. The other was their gender. Both need to be masculine or feminine. Both need to be feminine. The other is their number, which is what they're saying over here. If mawsuf is singular, then sifa must also be singular. Mawsuf is plural, sifa must also be plural. Example, it's qawmun salihuna, a pious nation. The word qawmun is ismul jama'. You treat it as plural here, and hence you need to use the word salihuna, which is the plural form of salih. And last thing was i'rab, the grammatical state of mawsuf and sifa must match. So 4 things they need to match. So this is what they're repeating here, that they should match in being definite or indefinite, and match in being in their gender, and also match in their number, meaning singular is going to match with singular, dual is going to match with dual, plural is going to match with plural. Last thing they say when they say however, they say the noun, when the noun being described is jam'u ghayri aqilin, plural of an unintelligent being, whether masculine or feminine, the adjective is generally singular feminine, although it is sometimes plural. This is actually a detailed point, and it's a very important rule. They give example, ayyamun ma'duda. You can write it this way, or you can say ayyamun ma'dudatun. So anyone tell me, what's the word ayyamun? Days. What does it mean? Yeah, days. Okay, mashallah. So is it singular, dual, or plural? Plural. Very good. Is it salim or mukassir, sound or broken? In order to identify that, many times you need to go to the singular form of that. I would say it's broken. Yes, this is broken. What's the singular form of this? Yom. Yawm, right? One day, yawm. What would have been the sound plural if there had been? Yawmuna. Exactly. Yawmun. Yawmuna or yawmina. Yes. Yeah, although it's not used, but this for practice, I was asking. Yes, so this is a broken plural, ayyamun, and that means days. Okay. Now, since this is plural, and now they're giving example of mawsuf sifa. This is mawsuf and this is sifa here. So since mawsuf is plural, sifa must also be plural. Okay. Now, there are 2 ways you can write this. What's the first word? Ma'duda.
What is it? Singular, plural, or what? Singular. And the second word is? This one. Plural people. Yes. So this second word, this plural, is it broken or sound? Salim. Silent, right? So that's sound. Sound. So masculine, feminine. Feminine. Feminine, right? So what the rule is now, with all this information on the screen, the rule is that things which are plurals of unintelligent beings, things which are unintelligent, their plurals can be treated as feminine singular. This is also feminine, correct? Ma'duda. This is also feminine. Things which are unintelligent, their plurals can be treated as feminine singular, and their plurals can be treated as feminine plural. This is the rule. So the word yawm is actually masculine, but when you make a plural of that, ayyamun, you treat the word ayyamun as a singular feminine, or you can also treat it as a plural feminine. That's the rule. So although the word yawm itself was masculine, but when you go to plural, you can treat it feminine. The feminine can be treated as singular, can also be plural. So here they treat it, in the first example, they treat it as feminine singular. That's the reason they use the sifa, which is feminine singular. Although mawsuf and sifa must match in number. All right. The word ayyam is many days, but ma'duda is a single counted day, right? Ayyam ma'duda means days of countable days. Countable days. Okay. So in Arabic, you don't need to use the word ma'dudatun, the plural form of ma'dudatun here. You can also use the singular form, but it must be feminine. That's one thing we all agree on. This must be feminine, even though the word ayyam, so the singular of this is masculine, but the plural of this, because it is unintelligent being, meaning it's not something that lives, a day is indicating a time period only. So it's treated as a feminine form in the plural case, and that feminine form in the plural case, when dealing with other words, you can like in mawsuf sifa case, you can use it or treat it as a singular, or you can treat it as a feminine plural. Inshallah, we'll do more examples and that'll make it more clear, inshallah. I wanted to cover more than one lesson, but looks like our time is up. So inshallah, let's resume with the next lesson from next time. Do you guys have any questions? No questions? Is Zed online? Okay, yeah, that's why I saw your homework as well. I think you did a good job, inshallah. So I'm gonna inshallah post an assignment for you guys. I'll upload it in the next 24 hours, and I don't know if you'll be notified or not, but yeah, you'll have to finish it inshallah in the next week. And it's hopefully inshallah we'll cover most of what we've covered so far, the first 5 lessons. If there's any question, I think Kibai just added me on the group. Maybe you guys are part of that group, so you can ask me inshallah over there or private message. All right. Jazakumullah khair. Inshallah, let's stop. Okay, we are waiting for Abdul Qadir to join, so you guys can, if you want, you can review your lesson
ask any questions. I'll ask you guys question now. Let me pause the recording. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप उधर? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिला आपसे। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है वो एक काम भी आप लोगों के ज़िम्मे लगाया था, याद है किसी को? क्या याद पड़ रहा है, क्या काम था? आपने कहा था कि जब हम कुरान पढ़ें तो हर दिन जितना हमने कुरान पढ़ा है उससे 10 अल्फाज जिनके 10 चीज़ें आइडेंटिफाई करें और वो लिखें कि वो किस गिरदान से है। सही। तो किस किस को ये याद रहा और उसने इसको कर भी लिया? प्लीज रेज योर हैंड्स। तो भी याद नहीं रहा? वैसे मुझे याद था लेकिन करना पॉसिबल नहीं हो सका। अच्छा, उस्ताद तो जी। मुझे भी याद था लेकिन आपसे मुझे आपकी माजरत करनी थी कि एक थोड़ा चैलेंज महसूस हुआ उस और हाँ, वैसे वो हमारी डिस्कस कमी है करें। मेरी कमी है। चैलेंज जो नहीं है वो चैलेंज उसको हाँ जी, फरमाए, चैलेंज से क्या मुराद है? जी जी चैलेंज असली में बस शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये बहाना नहीं है लेकिन अपनी कमी है लेकिन असली में कुरान का जो टाइम होता है वो एक एक खास वक्त पे होता है। उसमें आप मुश्किल होता है कि उस वक्त कॉपी पेंसिल निकाल के फिर ठीक हो, उसी वक्त वो काम करें। तो बस ठीक हो। रिक्वेस्ट ये थी कि अगर जैसे पहला पहला होमवर्क मिला था जिसके अंदर थोड़ा इंडिपेंडेंस था कुरान टाइम से तो इंडिपेंडेंट वक्त निकाल के वो काम हो सकता था। खैर ये कोई बहाना नहीं है, अगर चाहते तो ठीक है, और वक्त निकाल के ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको ही अब आपने खुद ही उसका हल बताया कि इसको ना एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आप एक मरतबा फिर कुरान करीम उठा लें, जो आपकी तिलावत का टाइम है उसमें आप सिर्फ तिलावत कर लें। ठीक है, वो आमतौर पे यही होता है कि ऑफिस जाने से पहले या स्टडीज़ के लिए जाने से पहले इंसान तिलावत का एक मखसूस टाइम होता है, उसमें इतना टाइम नहीं निकल पा रहा होता है। ऑब्वियसली, ठीक है, समझ में आता है। तो उसके लिए फिर यही है कि जिस तरह आपने पहले असाइनमेंट के लिए अलग से वक्त निकाला, काफ़ी टाइम दिया, तो किसी इसके लिए भी जो है वो 2-4 मिनट, और वो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है ना कि आप बाकायदा कुरान करीम लेके बैठे हैं आपके पास, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी कुरान करीम तो अवेलेबल है ना। तो आप किसी भी जगह पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, कहीं भी हैं, तो इसके लिए मतलब आप अपने आप को फॉर्मल ना करें। उसमें ही आसानी है ना, जब आप अपने इस पेस के साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें आज़ाद रहें, क्यों अपने आप को पाबंद कर रहे हैं। तो होपफुली के नेक्स्ट उसमें आप लोग ये करेंगे, ये आप ये जो काम है ना, इसको तो आप अपनी एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लें। मैं ना भी कहूँ तो आप कर लें, कोई पाबंदी तो नहीं है इसमें। मतलब ये इसका तो मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि आपको कुरान समझ में आने लगेगा तो आपकी दिलचस्पी और बढ़ेगी।
जो मकसद है वो आपको हासिल होता हुआ नजर आएगा कि हाँ ये तो जो मैं हमारा मकसद था वो हमें हासिल भी हो रहा है। तो इसमें मेरा इंतज़ार ना करें आप। आपको जब और जहाँ मौका मिले कुरान करीम आप स्क्रीन पे ऑन कर लें। कोई भी आपके पास कागज़ और पेंसिल है उस वक्त उस पर नोट कर लिया, या इवन आप अपने नोट पैड पे नोट कर लें। आप अपने मोबाइल के अंदर ही उसको नोट कर लें, और जब आपको टाइम मिलता है उस वक्त आप अपनी कॉपी पे उतार लें उसको। अच्छा, कॉपी पे उतारना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इतना आ, आसानी से अगर इसको लिख सकते हैं उस पे मोबाइल स्क्रीन पे, तो आप मोबाइल स्क्रीन पे लिख लें, कोई इशू नहीं है। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पे ही लिखें। ठीक है, तो आप अपने आप को आज़ाद रखें। आप क्या कहते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट इस्तेमाल कर लें। मतलब अब तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है ना, तो जितना मैक्सिमम आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिमाग में हाजिर रहेंगी। खैर चलें, अ, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है। तो हमने चंद इस्तिलाहात से बात शुरू की थी। उसमें हमने हरकत और मुतहर्रिक, फतहा, ज़म्मा, कसरा, सुकून, तनवीन, तशदीद और हरफ इल्लत, हरफ सही वगैरह की बात की थी। तो हरफ इल्लत और हरफ सही, किसी को याद है हरफ इल्लत किसे कहते हैं और हरफ सही किसे कहते हैं? जी उस्ताद हर्फ इल्लत जो है वाव अलिफ या को कहते हैं, और हर्फ सही है बाकी जो है इस्तेमाल करेंगे। हाँ, शायद मेरे पास थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो शायद इंटरनेट मेरे पास कमज़ोर है। कि आपकी आवाज़ पूरी तरह से सुन नहीं जी मैं सके कह मैं। रहा था कि हर्फ इल्लत जो है वो वाव आपकी अलिफ या आवाज़ का बाकी है। लोग सुन सकें। शायद आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे सही आ रही जज़ाकल्लाह। है। अच्छा। जी, आई थिंक उस्ताद अब को ठीक है से। आपकी आवाज़ ना। जी जी। तो मैं कह रहा था कि हरूफ इल्लत जो है वो वाव अलिफ या कहलाते हैं, और जो आई थिंक बाकी जो हर्फ हैं वो दूसरे हरूफ सही कहलाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी। ठीक जी। है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कलीमा। कलीमा किसे कहते हैं? जी, किसी को याद आ रहा है? कलमा उस्ताद एक वर्ड को कहते हैं। जी, एक ऐसा वर्ड जो अपनी मीनिंग बताए, यानी मीनिंग देता हो, तो उस वर्ड को जो है वो कलिमा कहते हैं। फिर वो इस्म भी होता है, फ़ैल भी होता है, हर्फ भी होता है। इस्म, फ़ैल, हर्फ कोई बताएगा? मुझे आपकी बात काफी अटक अटक के आ रही है। बस शायद यही इशू होगा, मेरे पास इंटरनेट का शायद इशू होगा। मैं असल में घर पे नहीं हूँ आज, बल्कि अपनी सिटी में भी नहीं हूँ। तो उम्मीद तो ये थी कि इंटरनेट जी सही ही जी चल रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ बेहतर है। जी, कुछ हाँ, कुछ नहीं। वैसे उस्ताद बेहतर जी। है, अभी तक मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो आ रही हो है। चलें, सकता है तो हो कि यहाँ सकता है से कि इशू। बस कुछ। जी, खैर। तो साथ आपकी आवाज जो है बहुत फंस रही है। जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ भाई। जी अब आए।
फिर एक मुझे एक्सपेरिमेंट कर लेने दें एक और क्या हाल है बोल? मिस्टर सुमेश, हाउ आर यू? जैद भाई, हामिद भाई, हमजा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताओ। बस सब सेट। निशात, हाउस निशात? हाँ ठीक ही चल रहा है, कॉर्पोरेट स्लेव करने की आदत डर गई है। फर्स्ट क्लास रोहित भाई, एक्टिव चार्जिंग फुल एनर्जी, 100% चार्जिंग। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। हामिद क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आज लगता है एनर्जी फुल है, 100% चार्जिंग। परफेक्ट, कैसा नहीं ज्वाइन कर दी? जी अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है इसका। यार यार, जी जज़ाकल्लाह। तो हम बात कर रहे थे इस्म फ़ाइल हर्फ की, और फिर उसमें इस्म किसे कहते हैं, कोई बता देगा? आई थिंक उस्ताद सम काम करने वाले को कहते हैं। और कोई ट्राई करें जी। ये नाम होता है हम्म, किसी जानवर, जगह या शख्स का, मेरे ख्याल में जी इंसान का है। जी जी, नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अपनी मीनिंग खुद बताता है और उसमें कोई ज़माना कोई टेंस मौजूद नहीं होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में फ़ैल किसे कहते हैं? उस पर कोई टेंस भी ला इंक्लूड तो अपना मीनिंग एक्सप्लेन करना। सॉरी। जिस पर टेंस दोबारा इंक्लूडेड से होता बताएं। है और वो अपना मीनिंग एक्सप्लेन जी, कर। जो अपनी मीनिंग खुद बताता है और टेंस जो है वो इंक्लूडेड होता है, तो उसको जो है वो फ़ैल कहते हैं, ठीक है। फिर फ़ैल जो है उसकी हमने मुख्तलिफ किस्में पढ़ी थी, एक्टिव और पैसिव, फ़ैल मालूम, फ़ैल मजहूल, और पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और फ़ैल मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ। फिर इसी के अंदर जो है वो सिंगुलर, प्लूरल और डुअल का जो है वो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। फिर जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को जो है वो इंक्लूड किया, मेल फीमेल को या मैस्कुलाइन फेमिनाइन को हमने जो है वो उसके साथ ऐड किया। फिर हमने एक बात की, मस्दर मुश्तक जामिद। मस्दर मुश्तक जामिद किसी के जहन में आ रहा है किसे कहते हैं? मस्दर किसे कहते हैं? ऐसे लफ्ज को वो इसम जैसे जो दूसरे दूसरे, अल्फाज बनते हैं। जी, वो इसम जिससे दूसरे अल्फाज बनते हैं उसको मस्दर कहते हैं, और वो जो कि खुद दूसरे से बना होता है उसे क्या कहते हैं? मुश्तक, मुश्तक कहते हैं। और जो ना खुद किसी से बना है ना उससे कोई बना हो उसे क्या कहते हैं? जामिद। जामिद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इलाल, इब्दाल, तखफीफ वगैरह पढ़ा था, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने फ़ेल माजी और फ़ेल मुजारे वगैरह की बात की। तो फ़ेल माजी यानी ऐसा फ़ेल जिसके अंदर कौन सा टेंस पाया जाता है? पास्ट। पास्ट, गुजरा हुआ ज़माना जिसके अंदर पाया जाता है, तो उस फ़ेल को जो है वो फ़ेल माजी कहते हैं। और फिर हमने फ़ेल माजी की जो है वो गिरदानें पढ़ी, नसरा नसरा, नसरू, नसरत वगैरह। फिर उसका मजहूल नुसरा नुसरा नुसरो, फिर उसका नेगेटिव मा नसरा, फिर अब मजहूल का नेगेटिव मानुसरा वगैरह, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, जहन में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, याद हो गया, आ गई ये चीज़ें। फिर हमने ये भी बीच में बात की थी कि हम जो है वो वर्ड को देखकर उस
की ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फ़ैल को देखकर, उसकी फॉर्म को देखकर, उसके सीगे को देखकर जो है वो हम ट्रांसलेशन की कोशिश करेंगे। और सीगे की पहचान हमें होगी उसके वज़न से, उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए कि इसके आखिर में क्या आ रहा है, लाम अलिफ ला आ रहा है या नहीं आ रहा, या आखिर में वाव आ रहा है, या आखिर में ता ज़बर ता, या ता ज़ेर ती, या ता साकिन, या जो है वो तुम या तुमा या तुन्ना या ना या तू वगैरह आ रहा है। इनके ज़रिए से हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन सा सीगा है, यानी इसका फ़ाइल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। फ़ैल तो सबके अंदर ही नसरा है, ठीक है। अब उसका सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, बोथ है या प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, ये सब हमें किससे पता चलेगा, उसके वजन से पता चलेगा। ये सारी चीज़ें रिकैप हो गई। इसमें कोई सवाल तो किसी के जहन में नहीं है? जी, किसी के जहन में कोई सवाल? ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। जी उस्ताद। ठीक है, तो आगे जो है वो फ़ैल की दूसरी किस्म आ जाती है। फ़ैल है मुजारे। एक फ़ैल की किस्म जो थी वो क्या थी, फ़ैल है माजी। और दूसरी जो फ़ैल की किस्म है वो क्या है, फ़ैल है मुजारे। ठीक है। फ़ैल माजी के बारे में हमने कहा कि फ़ैल माजी वो होता है कि जो गुजरा हुआ ज़माना, पास्ट का ज़माना उसके अंदर एग्जिस्ट करता हो। और फ़ैल मुजारे जो है वो उसको कहते हैं कि जिसके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जिसके अंदर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। ठीक है। प्रेजेंट की मीनिंग दे रहा हो तो भी मुजारे है, फ्यूचर की मीनिंग दे रहा हो तो भी मुजारे है। ये भी हमने बात की थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त प्रेजेंट की मीनिंग कहते हैं फ्यूचर की बात की थी हमने, कैसे पता चलेगा? जी, किसी को याद है कैसे पता चलेगा? उस्ताद, जो आपने पिछली 40 सेकंड जो बात बोली वो नहीं समझ आई क्योंकि गिर गई थी आपके आवाज़। If that's what you सॉरी, call me, just stop. आवाज़ नहीं आ सकी। हाँ जी, आपकी आवाज़ कट गई थी उस्ताद। अच्छा, चले मैं दोबारा से कह देता हूँ कि हमने माजी के बाद मुजारे की बात की है। और मुजारे के बारे में हमने कहा कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है। तो किसी जगह पे अगर मुजारे आया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? सर उस्ताद, जैसे उसकी वो हालत बदलेगी, वो एक और वजन पे आएगा। नहीं, मैंने अर्ज किया कि वो दोनों के लिए सेम ही होता है, वजन के एतबार से सेम होता है मुजारे। ये हम हाँ नहीं, पहले बाकी डिस्कस जुमले कर के चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट से फिर पता चलेगा। जी जी, बिल्कुल जी जी, कॉन्टेक्स्ट को देख के जो है ये पता चलेगा कि यहाँ प्रेजेंट के लिए है या यहाँ फ्यूचर के लिए है। कोई ऐसा कोई ना कोई इशारा उसके अंदर मौजूद होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये यहाँ प्रेजेंट के लिए है या यहाँ पे फ्यूचर के लिए है। बहरहाल ये मेनली आपको ये याद रखना है कि मुजारे जो बनता है वो माजी से बनता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे क्या आ रहा है? पहले माजी आ रहा है, जी ठीक है। तो हमने कहा कि मुजारे जो है वो माजी से बनता है। इसका मतलब ये है कि नसरा से जो है वो मुजारे बनेगा। ठीक है। अब नसरा से मुजारे कैसे बनेगा, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम आपको कुछ मुजारे बताते हैं या दिखा देते हैं आपको कुछ मुजारे।
जब आपके सामने स्क्रीन रुक जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ मुजारे आ गया। जी आगे। आ गया। तो क्या नजर आ रहा है आपको मुजारे में? यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना। वही तीन तीन की आप वो बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना। तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना। अनसुरु, ननसुरु। तो कोई बताएगा कि ये जो गिरदान है इसके अंदर टोटल कितने सीगे हैं? 14, सॉरी, 14, 14। 14 है। क्यों 14 है? क्योंकि माजी से बनते हैं और फेल माजी के 14। क्योंकि आगे आपने क्या बताया, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। क्योंकि ये फेल माजी से बनते हैं, तो और फेल माजी के 14 हैं, तो इसके भी फिर 14 होंगे। चले, एक वजह ये हो सकती है, और कोई वजह किसी के जहन में? हम इसमें वैसे 15 गिवन है, लेकिन दो जो है वो ऐसे हैं जिसमें एक रिपीट हुआ है, तो फिर वो 14 बन जाते हैं। और कोई वजह किसी के जहन में? और जो मुतकल्लिम वाला होता है उसमें जो है जी, कुछ अलग से नहीं होते हैं, मतलब तक्कर तस्मिया जमा उसमें जो है अलग तफरीक नहीं करते। ठीक है। और कोई किसी के जहन में? चलें, आपको थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है। हमने ये कहा था कि असल में कोई भी फ़ेल जो होता है वो खुद तो सिंगल ही होता है। उसका जो सब्जेक्ट होता है वो कभी सिंगल होता है, कभी प्लूरल होता है, कभी जो है वो बोथ होता है, फिर कभी वो मेल होता है, कभी फीमेल होता है। अगर इस चीज़ के एतबार से देखें फिर वो कभी फर्स्ट पर्सन होता है, कभी सेकंड पर्सन होता है, कभी थर्ड पर्सन होता है। अगर इस एतबार से देखें तो टोटल क्या बनना चाहिए था? 18। 18 बनने चाहिए थे। लेकिन चूंकि अरब के इस्तेमाल में कुछ सीगे रिपीटेड हैं, इस वजह से वो 14 बनते हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल ये करे कि भाई ये 14 सीगे क्यों हैं मुजारे के, तो उसका जवाब भी यही होगा। अगर कोई कहे कि माजी के 14 सीगे क्यों हैं, तो उसका जवाब भी यही होगा। अगर कोई कहे कि जो है वो नहीं के 14 सीगे क्यों हैं, तो उसका जवाब भी यही होगा। यानी ये जवाब नहीं होगा कि चूंकि माजी में 14 है तो यहाँ पर भी 14 है। ये एक मजबूत जी जवाब नहीं होगा। क्लियर है? सर जी, क्या आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज आ, आंसर? मैंने मैंने ये कहा कि अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि ये मुजारे के 14 सिगे क्यों हैं, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? जो भी मैंने कहा। मेरी बात सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ ये रही है, उस्ताद एक दफ़ा बट रिपीट करते आप हैं एक दफा ताकि रिपीट हमें कर। सही से समझ आए। मैं रिपीट, अच्छा ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर हमसे कोई से एक क्वेश्चन करे कि जो है ये 14 सिगे क्यों हैं, तो वो इस वजह से है कि असल में फेल जो होता है वो तो खुद तो सिंगुलर ही होता है, एक ही काम होता है, ठीक है। उसके जो सब्जेक्ट, जो डूअर्स होते हैं, वो या तो कभी एक होता है, या कभी दो होते हैं, या कभी तीन होते हैं। फिर या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो वो जो है क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा। तो इस तरह 18 बनते हैं। अब उसमें से चूंकि रिपीटेड कुछ हैं तो इस वजह से 14 होते हैं। अब ये 14 चाहे माजी हो तो भी 14 होंगे, मुजारे हो तो भी 14 होंगे, नहीं हो तो भी 14 होगा। आगे नहीं भी आ रहा है, आ जाएगा इंशाल्लाह रजीज। ठीक है। यानी कोई भी फेल होगा तो उससे जो मैक्सिमम सीगे बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? हाँ। 18। सर से लेकिन प्रैक्टिकल कितने हैं? 14। सॉरी, सर से 14। हम ठीक है। मुझे एक तो बात पूछनी वजह थी। अगर हमसे कोई अगर कोई सर हमसे मेरी वजह बात आ रही पूछेगा ना, तो हम वजह के अंदर ये पूरी बात करेंगे। क्लियर है? सर से एक बात पूछनी थी, अगर बात नहीं आ रही। जी जी जी। मुझे ये पूछना था कि देखिए अगर हम रिपीटेशन की वजह से खत्म कर रहे हैं तो फिर तो 13 नहीं होने चाहिए। वो कैसे?
क्योंकि तफालानी ओ तो रिपीट होता है। जी 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 ठीक है। जी जी ठीक है। ठीक कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। यानी अगर आप उसको भी ये कहें ना तो वो 13 ही होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा सीगा जो है वो 2 मरतबा इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर फर्क बुनियादी तौर पे इस वजह से करते हैं कि ये जो पहली मर्तबा तफालानी नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, वाहिद मुअन्नस गायब से बना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल से बना है। और जो दूसरी मर्तबा तफालानी नजर आता है उसको हम कहते हैं कि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर से बना है। बस इतना फर्क करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि वो दोनों तफालानी तफालानी भी एक जैसे ही हैं। ठीक है। और इस केस के अंदर तो तफालू तफालू भी यानी तंसुरु तंसुरु भी 2 मरतबा रिपीट नजर आ रहा है आपको। यानी मुजारे के केस में तो तंसुरु तंसुरु भी रिपीट नजर आ रहा है, माजी के केस में जो है वो ये रिपीट नहीं होता। लेकिन चूंकि माजी के अंदर इनमें से हर एक अलग अलग है। क्लियर है? तो इस वजह से मुजारे में भी उसको 14 उसको उसी तरह रखा जाता है। अदरवाइज अगर मुजारे में आप देखेंगे तो वो 13 भी नहीं 12 हो जाएंगे। वाज़ेह है बात? आपका बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल सही आपने उसको वो किया, हाईलाइट किया है। अगर आप मुजारे जी। के एतबार से देखेंगे तो 13 भी नहीं 12 हैं वो। और मजीद एक और रिपीटेशन नजर आ रही है। नहीं कर सब, माजी में भी नसर तुमा की रेपुटेशन नहीं होती। नसर तुमा वहां पे यानी यहाँ रिपीटेशन किसी और की है और वहाँ रिपीटेशन किसी और की है। यहाँ रिपीटेशन में एक और यानी ये इजाफा हो जाता है ना। वहाँ नसरता और नसरती और नसरत ये तीनों अलग अलग है ना। जी जी। और यहाँ अगर आप इसमें देखें तंसुरु, तन शुरू भी रिपीट हो रहा जी बिल्कुल। है ना, इसमें तो रिपीट हो रहा है तंसुरु ना, तन 3 शुरू भी बार दो आ रहा है। मरतबा आ रहा है। जी। कहाँ कहाँ आ रहा है नहीं भाई? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत पढ़ गया, दो सॉरी सॉरी। मरतबा है। मुन्नस ठीक है, गायब पहला और वाला यंसुरु है। हाजिर। जी दो हैं। दो हैं। वाहिद मुन्नस गायब और वाहिद मुजक्कर हाजिर, ये दोनों सेम है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मुजारे के लिए हम अलग बात करें और माजी के लिए अलग बात करें? तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये कहा जाता है जो माजी में 14 वाली बात कर ली ना, वही मुजारे में भी 14 वाली बात की जा रही होती है। याद करने के हवाले से ये आसान रहता है कि वहां पर भी हमने 14 सीगे याद किए, यहाँ पर भी हमने 14 सीगे याद किए। अदरवाइज बात बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मुजारे में तो 12 सीगे बनते हैं। वाजे बात? कर सब यहाँ ये तक तो बात वाजी है, क्लियर है? लेकिन 14 की वजह नहीं समझा कि फिर 14 क्यों रख रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ डुप्लीकेट्स निकाल तो माजी में भी वैसे नसर तुमा रिपीट नहीं हो रहा था। हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो है क्या कहते हैं, नसर तुमा को अगर आप देखें तो उसको अलग से सीखा यानी आप उसको कम, ये जो गिरदान है ना, ये गिरदान जो हमारे सामने है इस वक्त किताब में, ये आप बहुत अच्छी तरह से जहन में रखें कि अरब गिरदाने नहीं रखते हैं। अरबों के यहाँ गिरदाने नहीं होती हैं। आप इवन अभी भी कोई सी भी अरबी की यानी किसी अरब राइटर की लिखी हुई कोई आप सर्फ की किताब उठाएंगे ना, वहां आपको गिरदान नहीं मिलेगी। और ना 14 जो है वो इस तरह से सीखे मिलेंगे। समझ में आई? वजह समझ में आ रही है अब आपको कुछ? ये हमारे याद करने के लिए, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर याद को आसान करने के लिए ये अंदाज इख्तियार किया गया है। जी जी कर सब। ठीक है कि जजाकल्ला। वो तीन 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 के 4 ग्रुप बन गए और लास्ट में 2 का एक ग्रुप बन गया। अगर ये नहीं करेंगे हम तो कहीं 2 का ग्रुप बनेगा, कहीं 3 का, फिर कहीं 2 का ग्रुप बनेगा, फिर कहीं 3 का। तो उसको जबान पे याद करने के एतबार से मुश्किल होगी। अब क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब क्लियर है उसका। जी। ठीक हो गया। अब जरा कोई साथी इसको बल्कि सभी ने एक एक करके पढ़ना है। जरा इसको एक एक करके पढ़ें। नजर आ रहा है ये असल में मोबाइल स्क्रीन से मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि वो लैपटॉप के साथ वही कनेक्टिविटी का ज़्यादा इशू आ रहा है इसके मुकाबले में इस वजह से। तो ये आप लोगों के पास वैसे किताब अवेलेबल भी है, लेकिन पता नहीं इस वक्त आपके सामने है या नहीं है। तो कोई साथी ज़रा इसी से पढ़ लें जिसने थोड़ा पहले ये गिरदान देखी हुई हो, वो पहले पढ़ लें, फिर बाकी भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जी कौन पढ़ रहा है पहले?
शुरू करें। मैं बोल जी। यफुल यफुलानी यफुलूना तफरुल तफरुलानी यफअलना। सॉरी, ये आप यनसुरु पढ़ें, आप ये फॉलू पे ना जाएं, आप वो आपको मुश्किल करेगा, परेशान करेगा। यनसुरु ओके, यनसुरानी पढ़ें। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुर तंसुरानी यंसुरना तंसुर नहीं, तंसुरा तंसुर नहीं है, तंसुर नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। थर्ड फोर्थ वन को आपने क्या पढ़ा? तंसुर तंसुरु तंसुर नहीं, तंसुरु है जी, ठीक कर लें इसको, तंसुरु सही है। तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना उन- अंसुरु अंसुर तंसुरु। जी। नंसुरु। अंसुरु और नंसुरु है, सॉरी। नंसुरु जी। कोई और साथी? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। हमजा जी। पहले पढ़ लो। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसिरीना नहीं, तंसुरानी एक मिनट। तंसुरूना के बाद क्या पढ़ा आपने? तंसुरूना तंसुरीना जी। जी, तंसुरीना, तन, ठीक है। तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुरु। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुरु। अंसुर नंसुरु जी। नेक्स्ट। ये मैं करता हूँ। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसु तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुरु। जी, कोई रह गया अभी? जी उस्ताद, मैं भी कर लूँ। जी प्लीज। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी तंसुरना तंसुरु नहीं, तंसुरु तंसुरानी के बाद क्या है? तंसुरु सिक्स सिक्स्थ वन क्या है? यंसुरना जी। यंसुर। तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुर तंसुरानी तंसुरु तंसुरना अंसुरु नंसुरु। ठीक है। तो आज का आपका जो काम है बुनियादी तौर पे वो यही वाली गिरदाना आप याद करेंगे, इसको और अच्छी तरह से जबान पे जारी करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अब थोड़ा सा देखिए कि यंसुरु जो है ये नसरा की जगह पे है। तो नसरा की ट्रांसलेशन के अंदर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल की ट्रांसलेशन करते थे, तो यंसुरु की ट्रांसलेशन भी हम वही थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल की हम ट्रांसलेशन करेंगे। क्या ट्रांसलेशन की हुई है सामने, आप देखें क्या किया हुआ है ट्रांसलेशन। मदद कर रहा है या करेगा वो एक बार। ठीक है। कर रहा है या करेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर कर रहा है, ठीक है। और वो एक मर्द का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। यंसुरानी, मदद कर रहे हैं या करेंगे वो दो मर्द, ठीक है, तो ये तस्निया हो गया। यंसुरूना, मदद कर रहे हैं या करेंगे वो कई मर्द, ठीक है। आगे ट्रांसलेशन देखने की जरूरत तो नहीं है ना, आप समझ गए हैं ना, ट्रांसलेशन उसी एतबार से हो रही है, सब्जेक्ट के एतबार से हो रही है। नसरा का मतलब तो मदद करना है, फिर जैसा उसका सब्जेक्ट है वैसा हम उसके ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर है? जी। ठीक है। अब ये देखिए कि अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि कहीं जो है वो शुरू में या लगा हुआ है, कहीं शुरू में ता लगा हुआ है, कहीं शुरू में हमजा लगा हुआ है और कहीं शुरू में नून लगा हुआ है। जरा काउंट करके बताएगा कोई कि या कितनी जगहों पे लगा हुआ है? चार। चार हैं। और से देखें।
कंफर्म हो गए चार? जी। ठीक है। अच्छा, ता कितनी जगहों पे लगा हुआ है? 5। नहीं, नहीं 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 नहीं, आठ। बहुत ज्यादा है। 8 जगहों पे लगा हुआ है। 8 जगहों पे क्या है? ता है। ठीक है, 6 तो एक साथ ता वाले नजर आ रहे हैं आपको, है ना? जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के सब में जो है वो ता लगा हुआ है। नजर आ रहा है सेकंड पर्सन कहाँ से शुरू हो रहा है? सेवेंथ वन से सेकंड पर्सन शुरू हो रहा है ना। तनसुरु, जी। दूसरा वाला तनसुरानी, तनसुरूना, तनसुरीना, तनसुरानी, तनसुरना, इन सब के अंदर शुरू में क्या आ रहा है? ता। ता आ रहा है ना। 6 ये हो गए, और 2 शुरू में आ रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर है? जी। तो 4 और 8 कितने हो गए? 12। पीछे कितने रह गए? 2 रह गए। उनमें से एक में हमजा लगा हुआ है और एक में नून लगा हुआ है। क्लियर है ये बात? ऐसे ही है। ये जो जी। 4 हर्फ है ना, 4 हर्फ हैं, या, ता, हमजा और नून, इनको हुरूफ मुजारे कहते हैं या अलामत मुजारे कहते हैं। क्या कहते हैं इनको भाई? हरूफ मुजार। या अलामत मुजारे कहते हैं। क्या समझ में आता है अलामत मुजारे? इनका, इनको क्यों अलामत मुजारे कहते होंगे? आपको क्या लगता है? अलामत किसे कहते हैं? सिंबल किसे कहा जाता है? या साइन किसे कहा जाता है? एक ऐसी चीज जिससे एक और चीज का पता लगता है। जी, जिसको देखकर किसी चीज का पता चले ना, उसको उसकी अलामत या उसका साइन या उसका सिंबल कहते हैं ना। तो अलामत मुजारे का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा कोई मुजारे नहीं हो सकता कि जिसके स्टार्ट में इनमें से कोई एक भी ना हो। क्लियर हो गया मतलब? यानी ऐसा मुजारे कोई भी होगा तो या तो उसके शुरू में या होगा, या ता होगा, या हमजा होगा, या नून होगा। ये मुमकिन नहीं है कि मुजारे भी हो और उसके शुरू में ना या हो, ना ता हो, ना हमजा हो, ना नून हो। अब कौन कौन से सीगों में, 14 में से कौन से सीगों में या होगा, कौन से में ता होगा, कौन से में हमजा होगा, कौन से में नून होगा? तो ये आप खुद मुझे बताएं कि या कौन से सीगे में है। अब मैं क्वांटिटी नहीं पूछ रहा हूँ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से सीगे में या लगा हुआ है। तो जरा बताएं कौन कौन से सीगे में है। सीगा भी आपके सामने लिखा हुआ है, वहां से देख के आप बता सकते हैं। वाहिद, मुज़क्कर गायब, तस्नीया मुज़क्कर जी। गायब, जमा जी। मुज़क्कर गायब जी। और जमा मुअन्नस। 4 सीगे ये वाले, वाहिद, मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब के शुरू में क्या आता है? या या। आता है। ठीक है। ता जो है वो कौन कौन से सीगों में आ रहा है? वाहिद मोहनस गायब। जी। हाँ सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, सही है। हाँ, वाहिद मोहनस गायब, तस्नीया मोहनस जी। गायब, फिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्नीया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मोहनस हाजिर, तस्नीया मोहनस हाजिर, जमा मोहनस हाजिर। ठीक है, क्लियर है भाई? वाजे, ये 8 सीगों में जो है वो ता आ रहा है, और वाहिद मुतकल्लिम में हमजा है और जमा मुतकल्लिम में नून है। ये तो हो गया। जो जो चेंजिंग्स आई हैं, जो चेंजिंग आई है माजी में, ये एक तो उसके स्टार्ट में आई। नसारा के स्टार्ट में क्या लग गया? या लग गया, या ता लग गया, या हमजा लग गया, या नून लग गया। एक तब्दीली तो पास्ट में ये की गई कि उसके शुरू में अलामत मुजारे में से कोई एक लगा दिया गया। दूसरी तब्दीली उसके आखिर में हुई है, अगर आप देखें तो। नसारा जो था, नसारा, इसमें लास्ट जो लेटर था रा, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? जबर लगा हुआ था, फतहा था। और यंसुरु में
रा के ऊपर क्या है? दम्मा। जम्मा है। ठीक है। फिर मजीद अगर आप देखें आगे, तो आपको कहीं नून लगा हुआ नजर आ रहा है, अलिफ नून। कहीं वाव नून लगा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। कहीं जो है वो सिर्फ नून लगा हुआ नजर आ रहा है, यंसुरना जमा मुन्नस गायब में, तंसुरना जमा मुन्नस हाजिर में। ठीक है। ये भी फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माजी से मुजारे बनाते हुए कुछ तब्दीलियां उसके शुरू में होती हैं और कुछ तब्दीलियां आखिर में होती हैं। ये भी क्लियर हो गया कि कुछ तब्दीलियां शुरू में होती हैं, कुछ आखिर में होती हैं। जी। ठीक है। कुछ तब्दीलियां जो शुरू में होती हैं उसको जब आपसे पूछा जाएगा कि रूल बताएं, पास से मुजारे कैसे बनता है, तो आप कहेंगे कि माजी से मुजारे इस तरह बनता है कि माजी के शुरू में चार हरूफ में से कोई एक लगा देते हैं। कोई रिपीट कर दे मेरी बात को। माजी मुजारे ऐसे बनता है कि चार हरूफ में से एक हरूफ आप माजी के पीछे लगा देते हैं। माजी के शुरू में लगा देंगे, ठीक है, स्टार्ट में लगा देंगे। दूसरा हम क्या कहेंगे, दूसरा ये और आखिर में पांच सीगों के आखिर में पेश लगा देंगे जम्मा। सात सीगों के आखिर में नून नून एराबी लगा देंगे। मैं भी इसको डिफाइन करता हूँ। और दो सीगों के आखिर में नून जमा मुअन्नस आ जाएगा। अगर आप देखें तो आपको पांच सीगों में आखिर में पेश नजर आ रहा है। कौन कौन से हैं बताया कोई? हाँ, यंसुरु, तंसुरु। आप यूं बताएं, वाहिद मुजक्कर गायब। अच्छा, यूं बताएं। वाहिद मुजक्कर गायब में है, और जी। वाहिद मोनस गायब, जी। वाहिद मुजक्कर हाजिर, जी। और वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं उसको। जी वाहिद मुतकल्लिम और तस्निया जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम। क्लियर है? सब लोगों को नजर आ रहा है कि पांच सीगों के आखिर में क्या नजर आ रहा है? जम्मा। ठीक है। और नून जमा मुअन्नस दो सीगों में हमने कहा कौन कौन से हैं? जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। नजर आ रहा है? यनसुरना और तनसुरना, सिक्स्थ वन, और फिर जो है वो ट्वेल्थ। ये भी क्लियर है? जी। तो पांच और दो, सात हो गए। पीछे कितने बच गए? सात। सात। सात के आखिर में कहेंगे नून एराबी लगा हुआ है। सात के आखिर में क्या कहेंगे? नून एराबी लगा हुआ है। नून एराबी क्या होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप जिक्र करेंगे। अभी जो हमारे सामने एक रूल बन गया वो ये कि मुजारे बनता है किससे? मुजारे माजी। किससे बनता है भाई? माजी से बनता है। मुजारे बनता है किससे भाई? बताएं। माजी से। माजी से। अब सवाल होगा कैसे बनता है, तो क्या जवाब देंगे आप, कैसे बनता है? सारी एक दफा रिपीट करते हैं, थोड़ी सी रिपीट कर कंफ्यूज हो देता हूँ। रही थी। रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कर अलामत देता हूँ। मुजारे लगाने से। जी। दो दो तरह की तब्दीलियां होती है, एक उसके शुरू में और एक उसके आखिर में। शुरू में क्या करते हैं? अलामत मुजारे लगाते हैं। अलामत मुजारे फिर कोई पूछे क्या है तो क्या है? चार हरूफ हैं, या हमजा या नून या ता। ठीक है। और दूसरी क्या तब्दीली आती है, दूसरी क्या चेंजेस आती है? आखिर में आती है। आखिर में क्या तब्दीली आती है? पांच सीगों में पेश आता है, दो सीगों में नून जमा मुअन्नस आता है, और सात सीगों में क्या आता है? नून अरबी। नून एराबी आता है। अब कोई साथी पूरी बात को रिपीट कर दें, जिसको भी जहन में बैठ गई है वो रिपीट कर दें।
जी चले, कोई भी हिम्मत करें। सर मैं कोशिश करता हूँ। जी, यूं कहेंगे कि मुजारा जो मुजारे है बनता है। जी माजी से, लेकिन उसमें जी साथ दो कंडीशंस होती हैं। एक है कि शुरू में उसमें लामत मुजाहरा लगता है, और दूसरा है कि जी आखिर में उसमें से कोई तीन चीजें लग सकती हैं। या तो दम्मा लगता है, या जी। नून नून जबरनान लगता है, या फिर नून रबी लगता है। ये नून जबर ना को हम नून कहेंगे नून जमा मुअन्नस। क्या जमा। कहेंगे? नून जमा मुअन्नस। और ये मुजारे कहेंगे, मुजारा नहीं कहेंगे, उसका मतलब और अरे होगा थोड़ा सा। ठीक है, मुजारे मुजाहरा। है यानी रा के नीचे कसरा है, रा के ऊपर फतहा नहीं है। और कोई साथी रिपीट करेंगे? अम, माजी से मुजारे बनाने के लिए, मुजारे माजी से बनता है, उसके लिए दो अलामतें हैं। पहले पहले जो पीछे आती हैं वो अलामतें मुजारे कहलाई जाती हैं। वो अम, या ता अलिफ या नून होता है। और जो उसके हमजा, बाद आती अलिफ हैं नहीं वो कहेंगे आप, अलिफ अलिफ नहीं हमजा। कहेंगे, हमजा कहेंगे। ठीक है। जी। जी और जो बाद में आती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। या तो जुम्मा होता है, या जी नून जमा मुअन्नस होता है, या नून जी। एराबी होता है। क्लियर है भाई सब लोगों को? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई सवाल किसी का? अच्छा, सवाल किसी का हो तो पूछ लें, कोई अगर लीव करना चाहे तो कर लें। बस अब काम यही होगा आपके लिए नेक्स्ट वीक तक कि एक तो आपने ये गिरदान को थोड़ा अपनी ज़बान पे चढ़ाना है, जैसे आपने माजी की गिरदान को अपनी ज़बान पे जारी किया, तो ये मुजारे की गिरदान को भी आपने अपनी ज़बान पे जारी कर लेना है। यनसुरु यनसुरानी यनसुरूना, तनसुरु तनसुरानी यनसुरना, तनसुरु तनसुरानी तनसुरूना, तनसुरीना तनसुरानी तनसुरना, अनसुरु ननसुरु। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अब ये इतनी मुश्किल नहीं होगी जितना आपको माजी में कोई थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, तो अब ये इतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरा काम आपने ये इसका जो रूल है माजी से मुजारे बनाने का, इसको अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना है। भले आप अपने अल्फाज में बयान करें, वो कोई इशू नहीं है, बस बुनियादी तौर पे आप अपने जहन में इसको बिठाएंगे। और कोई सवाल किसी के जहन में है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। उस्ताद मेरा एक सवाल था। जी वो जो कुरान की आपने हमसे एक तरतीब बताई है, वो ज़रा जी अब अनक्लियर है ना, कि आप कुरान पढ़ते हुए फॉर एग्जांपल यदरिबूना आया, तो आप क्या जी। चाह रहे हैं कि हम सिर्फ यदरिबूना क्या लिखें, करें? या जी या हाँ, तो उस क्या क्या लिखना है? जी, मैं बताता हूँ। आपने मिसाल के तौर पे कुरान करीम पढ़ लेते तो उसमें आया कि सूरह फातिहा पढ़ लें मिसाल के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। नजर आ रहा है कुछ? नाबुदु और ननसुरु एक जैसा लग रहा है आपको? हम्म, नाबुदु ननसुरु। हम्म, ठीक है, आपने नाबुदु उठा के अपने पास लिख लिया कॉपी में। अब आगे आपने क्या करना है उसके साथ ना, तो आप लिखेंगे जैसे अभी हम ये चार्ट बना हुआ देख रहे थे ना, चार्ट हमारे सामने था। ननसुरु के बाद नेक्स्ट क्या था? उसका वजन था नफोलू। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? उसका सीगा था जमा मुतकल्लिम। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? उसका ट्रांसलेशन था। बस ये चीजें आप लिखेंगे, जो आपके पास चार्ट है ना, चार्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं बस आप वही चीजें उसके बारे में लिखेंगे। तो चार्ट आप पहले से बना के रख लें, चार्ट आप पहले से बना के रख लें, जो जो आपको मिलता जाए। अब तो आप माजी के साथ मुजारे को भी शामिल कर लें, माजी मिले माजी, मुजारे मिले मुजारे। शुक्रिया सर। जी। और कोई किसी के जहन में क्यूरी? ठीक है चलें। थोड़ा सा अब आपने टाइम निकालना है भाई, क्योंकि वैसे भी सर्फ की क्लास तो ऐसी होती है कि रोज़ाना होनी चाहिए। याद करने से मुतालिक चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं तो रोज़ाना इसको होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस है कि ना हमारे लिए पॉसिबल है रोज़ाना टाइम निकालना, ना आपके लिए। तो बस वो चलते फिरते आपने कुछ ना कुछ वक्त अपने ऊपर लाजिम करें कि निकालना है, ताकि इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और वालेकुम अस्सलाम।